اس لیے ان پر ضرور عذاب نازل ہوگا۔ ان آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ترجمے سے، ٹرانسلیشن سے شاید پورا پکچر کلیئر نہیں ہو رہا ہے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں کس بیک گراؤنڈ میں یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اتاری ہے۔ سیرت کے حوالے سے آپ تمام برادران اور تمام بہنیں جانتی ہوں گی کہ غزوہ تبوک، جس کو غزوہ عشیرہ بھی کہا جاتا ہے، غزوہ تبوک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے آخری غزوہ ہے، سب سے آخری لڑائی ہے، لاسٹ بیٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا، آپ کی زندگی کا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کو، کسی فوج کو آپ نے نہیں بھیجا، نہیں تیار کیا، اور وہ جنگ نہیں ہوئی اس کے بعد، یہ آخری جنگ تھی۔ یہ رومیوں سے جنگ ہوئی تھی، رومن امپائر سے یہ جنگ ہوئی تھی، اور ایک بہت بڑی فوج سے مسلمانوں نے ٹکر لیا تھا، مقابلہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ مسلمانوں کی فوج، یہ مسلمانوں کا لشکر، اہل اسلام کا قافلہ جب آگے کی طرف نکلا تو مسلمانوں کی فوج کے اندر کچھ منافقین بھی شامل تھے، کچھ منافقین بھی شامل تھے۔ ان منافقین کا کردار کیا تھا، ان منافقین کا رول کیا تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں، تفسیر طبری کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر اور دیگر تفاسیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک مشہور تابعی ہیں، مفسر ہیں، ان کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فوج کو لے کر کے نکلے، تو آپ کے ساتھ جو منافقین تھے، ان منافقین میں سے ایک شخص نے تانا دیتے ہوئے، ایک شخص نے مذاق کرتے ہوئے، ایک شخص نے ٹھٹھا کرتے ہوئے، اڑاتے ہوئے کیا کہا؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء الا ارغبنا بطونا واكذبنا السنة واجبننا عند اللقاء۔ اس منافق نے صحابہ کرام کو تانا دیتے ہوئے، صحابہ کرام کو مذاق کا مذاق اڑاتے ہوئے، ٹھٹھا کرتے ہوئے اس نے کیا کہا کہ ہم نے ان قاری صاحبان سے زیادہ کھانے والا، حریص، لالچی، اور ان سے زیادہ جھوٹ بولنے والا، اور ان سے زیادہ میدان جہاد میں بزدلی کا ثبوت دینے والا کسی کو نہیں پایا۔ یہ کس نے کہا؟ کسی منافق نے کہا صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں کہا۔ قاری سے مراد قاری قرآن نہیں ہے صرف، صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ سب علماء تھے، اس وقت جو بھی علماء ہوتے تھے ان کو قاری کہا جاتا تھا۔ تو اس منافق نے کیا کہا؟ ہم نے اپنی قاری صاحبان، ان سے زیادہ میدان جہاد میں جو لوگ ساتھ میں جا رہے تھے، ان کے بارے میں کیا کہا؟ ان سے زیادہ بزدل، ان سے زیادہ جھوٹی زبان والا، ان سے زیادہ حریص اور لالچی، پیٹو کھانے والا ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ یہ مذاق اڑایا۔ ایک صحابی رسول اس بات کو سن رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک شخص کو ایسے کہتے ہوئے پایا ہے۔ وہ اس طریقے سے صحابہ کرام کی مذمت کر رہا تھا، ان کا مذاق اڑا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے یہ میسج پہنچا، جیسے یہ پیغام پہنچا، ادھر سے پیچھے وہ منافق جس نے وہ بات کہی تھی بھاگا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما كنا نخوض ونلعب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ مذاق میں یہ باتیں کر رہے تھے، ہم نے جو ان کو پیٹو کہا ہے، ان کو لالچی کہا ہے، ان کو جھوٹ بولنے والا کہا ہے، اور ان کو میدان جہاد کے اندر بزدلی کرنے والا کہا ہے، ہم نے کوئی جان بوجھ کر کے نہیں کہا ہے، ہم نے ہنسی اور مذاق میں یہ بات کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 7ویں آسمان سے آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو جواب دے دیجئے، ان کو کہہ دیجئے کہ مذاق کرتے ہو کیا؟ مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کی آیتوں کے علاوہ اور اللہ رب العالمین کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا۔ مذاق ہی کرنا تھا تو صحابہ کرام ملے، مذاق ہی کرنا تھا تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ملے تھے۔ مذاق ہی کرنا تھا تو اور کسی چیز سے مذاق کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانہ نہ بناؤ، مذاق کر رہے تھے، بہانہ نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو، تمہارا اسلام ختم ہو گیا ہے، اب اسلام کے دعوے جھوٹے ہیں تمہارے، تم منافق تھے، تمہارا نفاق اللہ رب العالمین نے ظاہر کر دیا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کھلے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کا مذاق اڑانے والے، ان کا ٹھٹھا کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا کہ تم بہانے نہ بناؤ، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے اندر آتا ہے، اس روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ کے اندر بہت سارے صحابہ کرام جا رہے تھے، کچھ منافق بھی اس کے اندر شامل تھے۔ راستے میں بیچ میں بعض صحابہ کرام کے بیچ میں کچھ جو منافقین مکس تھے، ان منافقوں نے کیا کہا، یرجو حاضر رجل
अयरजु हाज़ा रजुल अन यफ्तह क़ुसूर अश-शाम व हुसूनहा, क्या ये आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस बात की उम्मीद रखता है, क्या इस खुशफहमी में है, क्या ये मगन है कि कल शाम के महल फतेह करेगा, क्या कल शाम की बिल्डिंगें फतेह करेगा? ये हैहाता लहू ज़ालिक, ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो फालतू बात है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इतना दम नहीं है मोहम्मद और मोहम्मद के साथियों में। इस तरीके से मुनाफिकों ने मजाक उड़ाया। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सहाबी ने इत्तला नहीं दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान से रब्बुल जलाल ने खबर दी, वही के जरिए से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आपको इत्तला दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी फौज में कुछ बेईमान लोग ईमान का दावा करके शामिल हो गए हैं, मुनाफिकीन हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। आप जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहबिसु अलैया रक्ब, फौज को रोक दिया जाए, जो काफिला चल रहा है जरा रुक जाए। आपने पैगाम पहुंचाया, काफिला जहां का तहां रुक गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील ने उन लोगों के नाम भी बताए थे, उन लोगों की निशानदही भी की थी जिन लोगों ने ये बात कही थी। अल्लाह अकबर। हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे उन मुनाफिकीन की खिदमत में पहुंचे, वहां हाजिर हुए। आपने पूछा, अंतुमुल लज़ीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने ऐसी बात कही है, ऐसी बात कही है कि क्या ये मोहम्मद और मोहम्मद के साथी ये सोचते हैं कि कल शाम के महल और शाम के किले फतेह करेंगे? हैहाता लहू ज़ालिक, ये तो नहीं होने वाली बात है। अल्लाह अकबर। ये मौका ऐसा नाजुक था कि कोई जवाब नहीं बना। इन मुनाफिकीन से अल्लाह के नबी ने पूछा, तुम लोगों ने अभी ऐसी बात कही है? और लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअब, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने मजाक में ये बात कही है, हमने कोई सोच करके जानबूझ करके दिल से ये बात नहीं कही है, हमने मजाक में ये बात कही है, हमने खेल कूद में, हंसी मजाक में। और हम भी ऐसे कहते हैं ना, हम भी ऐसे कहते हैं, जब कोई मजाक उड़ाता है किसी अल्लाह के दीन के किसी बात का, किसी सुन्नत का मजाक उड़ाता है, छोटी बड़ी किसी बात का मजाक उड़ाता है, और हम कहते हैं मेरे भाई क्यों मजाक उड़ा रहे हो, क्यों अल्लाह के नबी की सुन्नत का ठट्ठा कर रहे हो? तो कहता है यार मजाक कर रहा था, कोई दिल से नहीं बात कर रहा हूं, ईमान वाला हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा, मजाक कर रहा हूं मैं कोई जानबूझ करके, बेईमान नहीं हो गया हूं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो दो वाकया, यानी दो रिवायतें, कतादा की रिवायत और मोहम्मद बिन काब अल-कुरदी रहमतुल्लाहि अलैहिमा की रिवायत, इन दोनों रिवायतों से पता चलता है कि जिन सहाबे किराम का जिन मुनाफिकीन ने मजाक उड़ाया था, जिनके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे, ठट्ठा उड़ाया था, उन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की जबान से मुनाफिक करार दिया और फरमाया, कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, ऐ लोगो तुम लोग अपने ईमान के बाद काफिर हो चुके हो। मालूम ये हुआ, पता ये चला कि सहाबे किराम का मजाक उड़ाना, सहाबे किराम की बेइज्जती करना, सहाबे किराम कौन है? जो अल्लाह के कलाम पर अमल करने वाले हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, जो आपकी एक एक छोटी बड़ी हरकत को अपनी जिंदगी का लायहा समझने वाले हैं। इन सहाबे किराम का मजाक उड़ाना अल्लाह की किताब का मजाक उड़ाना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना है और खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन का मजाक उड़ाना है। क्यों? इसलिए कि वो दीन, जिस दीन पर अमल करने की वजह से सहाबे किराम का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो दीन अल्लाह का दीन है, वो सुन्नत अल्लाह के नबी की सुन्नत है, वो किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाज़िल करता है। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर अल्लाह के दीन पर अमल करने वाले अहले ईमान का मजाक उड़ाया जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि अल्लाह का मजाक उड़ाना है। हजरत अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह इस टॉपिक पर गुफ्तगू करते हुए फरमाते हैं कि कहीं भी मुनाफिकीन ने अल्लाह का मजाक नहीं उड़ाया था, कहीं भी मुनाफिकीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक नहीं उड़ाया था, कहीं भी मुनाफिकीन ने अल्लाह के कलाम का मजाक नहीं उड़ाया था। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्ताज़िऊन, ये बताओ जरा पूछो उनसे कि क्या अल्लाह से, उसकी आयतों से और उसके रसूल से मजाक किया जाता है? तो ये है मेरे भाइयों, ये है बैकग्राउंड, ये है पस मंजर। और रास्ते में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की तरफ जा रहे थे, एक और छोटा सा इसी पस मंजर में, इसी बैकग्राउंड में एक वाकया और सुन लीजिए जिसको मुफस्सिरीन ने लिखा है और ये सही रिवायतों से सारी बातें साबित हैं। एक मुनाफिक था ज़ैद बिन लुसैत नाम का एक मुनाफिक था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में उसी फौज के अंदर था। रास्ते में तबूक जाते हुए रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गायब हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी क्या हुई? खो गई, गायब हो गई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं, ऊँटनी कहाँ चली गई? दाएं बाएं इधर उधर जंगल में, झाड़ी में, वादियों में तलाश किया जा रहा है कि ऊँटनी कहाँ गई।
इस मुनाफिक ज़ैद इब्न लुसैत ने क्या कहा, अलैसा हाज़ा रजुल युखबिरुना अन खबरिस समा, क्या ये आदमी, ये मोहम्मद हमको आसमान की खबर नहीं देता है? ऐसा हुआ, अल्लाह ने ये फरमाया, अल्लाह ने ये फरमाया, अल्लाह ने ये फरमाया, क्या खबर नहीं देता है? देता है। वला यारिफु ऐन नाक़तुहु, और इतना नहीं पता इसको कि इसकी ऊँटनी कहाँ चली गई। खबरें आसमान की देता है और पता इतना भी नहीं है कि उसकी ऊँटनी कहाँ गायब हो गई। इस तरीके से उस आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म का मजाक उड़ाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से इसकी खबर दे दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागे भागे उस मुनाफिक के पास हाजिर हो गए, उस मुनाफिक के पास हाजिर हो गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्दो सलात पढ़ करके खुतबा दिया। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। उसके बाद ने फरमाया वल्लाहि अल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु ला अअलमु इल्ला मा अल्लमनी अल्लाह, मैं उतना ही जानता हूं जितना मुझे अल्लाह ताला इल्म देता है। मैं उतना ही जानता हूं जितना अल्लाह ताला मुझे इल्म देता है। मुझे अल्लाह ने ये नहीं बताया कि मेरी ऊँटनी कहां चली गई है, लेकिन अब जिब्रील अमीन के वास्ते से अल्लाह ने मुझे बता दिया है, अल्लाह ने मुझे बता दिया है कि ऊँटनी कहां है। हिया फी शैबी कज़ा व कज़ा फी तिलकल वादी, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मेरी ऊँटनी फला फला घाटी में, फला फला वादी में, फला घाटी के अंदर मेरी ऊँटनी मौजूद है। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को भेजा और फरमाया कि जाओ वहां से ऊँटनी को ले आओ, वहां से ऊँटनी को ले आओ, वहां से ऊँटनी को ले आया गया। ये है मुनाफिकीन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबे किराम, आपकी सुन्नत, आपके सहाबा, आपकी सुन्नत पर अमल करने वाले मुसलमानों का मजाक उड़ाया करते थे। मेरे भाइयों आइए जरा अब जरा मौजू में दाखिल होते हैं। ये तमहीद पस मंजर आप ज़हन में रखें, ये असल है, ये आयतें करीमा और ये आयतें, ये हदीसें बेस है जो मैंने आपके सामने रखा है। अभी आयतें आपके सामने बयान की जाएंगी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं भी अर्ज कर रहा था आपके सामने कि अपने तो बहरहाल अपने होते हैं, उनको कम अज कम अल्लाह के दीन से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गैर है, दुश्मन है, उनका कोई सहारा नहीं है। उनसे इसी बात की उम्मीद की जा सकती है कि वो दीन का मजाक उड़ाएंगे, दीन पर अमल करने वालों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अपनों का सहारा होता है, अपने होते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबसे पहले मक्के की वादी में तौहीद का ऐलान किया, तौहीद का पैगाम सुनाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सबसे पहले जो आपके बहुत ही ज्यादा क्लोज दोस्त थे उन्होंने ही इस्लाम कबूल किया था। आपके चचेरे भाई हजरत अली ने, आपके जिगरी दोस्त हजरत सिद्दीक अकबर ने, और इस तरीके से चंद लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। तो जो अपने होते हैं वो अपने होते हैं, पराये की बात नहीं की जाती है। पराये से इसी बात की उम्मीद की जा सकती है कि उनसे कोई खैर नहीं मिल सकता है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन, अल्लाह की नाजिल करदा किताब का मजाक उड़ाने वाले पूरी तारीख में रहे हैं। जब से दीन इस्लाम दुनिया में उतरा है, जब से तौहीद का अलम दुनिया के अंदर बुलंद किया गया है, उस वक्त से अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाने वाले मौजूद हैं। लेकिन हमें गैरों से कोई शिकवा नहीं है, गैरों पर हमें कोई अफसोस नहीं है। गैर तो मजाक ही उड़ाएंगे, उनसे उसी बात की उम्मीद की जा सकती है। जैसे कि आप जानते हैं गैरों ने बहुत सारे मजाक उड़ाए हैं, अल्लाह की किताब का मजाक उड़ाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन का मजाक उड़ाया है। आपने गैरों में, गैर जो मुसलमान नहीं है उनमें से आपने डार्विन का नाम सुना होगा। डार्विन का डेवलपमेंट का नजरिया था, यानी जिसको कहते हैं